Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle. I'm a disciple of Her Holiness Master Shamariji. Oh wow! Okay, the great question, by the way. So I met my guru, Her Holiness Master Shamariji. देश के युवा की अगर आप कल्पना करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे रील ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन आज का युवा अगर मैं दिखाने की पीछे कोशिश करूं तो आप ये भगवाधारी साध्वी को देख सकते हैं जो कि लंदन से अयोध्या आई हैं सिर्फ रामलला के लिए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में आपको हर जगह कुछ ना कुछ राम भक्त तो ज़रूर दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे पीछे जो राम भक्त दिख रहे हैं वो काफ़ी अनोखे हैं। इनका पहले वस्त्र देखिए, ये देश के युवा हैं जो कि लंदन से आई हैं सिर्फ रामलला के लिए। इन्हीं से जानेंगे कि आज के समय में जब युवा खेलने कूदने और अपने हर अयाशों में मशगूल है, आज दूसरे युवा अगर दूसरे पक्ष की ओर युवा को देखें वो भगवाधारी करके अध्यात्म की ओर जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Jai Shri Ram. जय श्री राम। My name is Saint Gabrielle. I'm a disciple of Her Holiness Master Shamariji. मैम, देश का युवा आजकल इंस्टाग्राम रील्स में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है और आप लोग लंदन से अयोध्या यानी भारत आकर राम राम का जाप कर रही हैं, कैसे ये परिवर्तन कैसे? Oh wow! Okay, the great question, by the way. So I met my guru, Her Holiness Master Shamariji, and the true definition of a Purna Satguru, based off of our scriptures, is that there's 7 types of guru, and the 7th guru is a Param Guru. And what the Param Guru does is they show you God within yourself. They show you that divine light that exists here, right? There's a shlok that says, Ira Pingana Shushmana Tina Abase Athai. Talks about these 3 Nadiya, right? And this Shushmana Nadi, once a Purna Sadguru opens it, then you can see that divine light within. In the Bible, it says the kingdom of God exists within you. In the Quran, it mentions the same thing. It talks about the Gabi eye. So the thing is that in all religious scriptures, it talks about this Param Gyan, right? Right? This Adhyatmic Gyan. And what happened was that I met the Purna Sadguru of this time. Her Holiness Master Shamariji showed me God within myself. She showed me practically. It wasn't just words. She practically showed me. And from that, I realized that I can't just live a normal life again. I want to live a life where I can send this message of truth. Because the reason why we've had this human body is to find God, right? That's our mission, right? Because why are we different to the monkeys that are running around here, the dogs here? Why are we different as human beings? We're different because we can make choices, right? We have a lagan, I guess is a great word for it. We have a way of like being attracted to God, to the Almighty, to the truth, right? That's why everyone's here. Everyone's attracted because Lord Ram's Murti, Lala Sarup's Murti is being stapited here, right? It's attracted everyone. That positive vibration is everywhere. Why? Because everyone is now realizing that it's a time for change. No one wants to live in struggle and stress and triumph, and no one wants to do that anymore. Everyone wants happy. Everyone wants shanti, right? They want peace. They want a happy, bright future. And that's what's coming now. Because my Guru, Her Holiness Master Shamariji, she's currently in Samadhi. She's bringing about this new age. She's bringing about this new time. Because what used to happen, that Sant Mahapurush used to do the Tyag, the Pasya, the Gyan Sadhana, the Samadhis, and they'd bring about a new age, right? Yog Parivartan. And because they would do that, then these new ages would come. Have you thought, why is it happening now? Have you thought about this? Yeah? That after 500 years it's happening now. Have you thought about this? Right? It's happening because there are those sants, those Brahmanish gurus that are doing this samadhi, that are bringing about this new change. And it's also my Guru Ma that will bring back His Holiness, Sri Ashutosh Maharaji, who's been in samadhi. Ashutosh Maharaji went into samadhi in 2014. It's all over the news. But he went into samadhi to bring about this new age, to bring about Navayuga. And that's what we're seeing now. Through his Tyag, Tapasya, through his samadhi, he's brought about this new time. And it is that Ma Jagat Janni, that Ma Adi Shakti, Ashakti, that has come onto this earth, who is come in an incarnate form of Her Holiness Ma Ashutosh Maharaji, that is bringing about this new change. And she will bring back Ashutosh Maharaji. थैंक यू मैम। देश का युवा आजकल मशगूल है रील्स में, इंस्टाग्राम में। आप अध्यात्म से जुड़ गई, कैसे? अध्यात्म ही जीवन का लक्ष्य है।
बस यही चीज़ है। एंड द थिंग इज़ हमारी आज की युवा इस चीज़ को भूल गई है, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान जी जो थे उन्होंने युवा अवस्था में उन्होंने ऐसी लीलाएं की। राम जी भी युवा ही थे, हमारे भगवान जी युवा थे और उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। तो आप अपनी जो ये बहुत सुंदर सुंदर जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, तो आप ऐसे व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? क्योंकि हम भी ऐसे कर रहे थे, व्यर्थ गवा रहे थे, चेसिंग आफ्टर थिंग्स, और कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। पल जब आपको लगा हो कि नहीं अब बस खुद को बदलना है, कब से ये परिवर्तन वो सिर्फ एक पूर्ण सत्ता के साथ होता है। और हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी जी, हम बहुत लकी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं कि माँ ने हमें चुना और हमें उसने ऐसा अध्यात्मिक दिया। उनके सानिध्य में आके उनका दर्शन करने मात्र से हमारे अंतर में परिवर्तन आने लगा। पर जब उन्होंने हमें आत्मज्ञान दिया, उन्होंने हमें दिखाया हु आई एम। She showed me who I am, because Vivekanand ji says, if there is a God, you must see him. If there is a soul, you must perceive it. Otherwise, it is better to be an atheist than to be a hypocrite. तो उन्होंने क्या कि जो ईश्वर है उसको देखना चाहिए, जो आत्मा है उसको देखना चाहिए। हम आत्मा है ना, हम आत्मा है, शरीर तो नहीं है। पर उस आत्मा को जब उन्होंने बोध कराया, तो फिर हम अपने आप को, जो स्टोइक्स होती है, स्टोइक फिलोसफी युवा बहुत फॉलो करती है, उसको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उसमें क्या चीज़ कहते हैं, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप को जानते नहीं तो उसके साथ आप ट्रू कैसे हो सकते हैं? आपको अपने आप को जानने का मार्ग ये है जो माँ ने हमें दिया। उन्होंने हमें अपने आप से इंट्रोड्यूस किया और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। मैम 500 वर्षों का ये जो संघर्ष है वो खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संघर्ष जो है, संघर्ष ज़रूरी होता है, जीवन का नियम है संघर्ष। पर ये करना क्यों ज़रूरी होती है? टू गेट अ रियली गुड एंड गोल। अब जब हम ओलंपिक्स देखते हैं, जब वो फिनिश लाइन को कोई फिनिश करता है, सब ऐसे हंस के खेल के युवा बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्यों? स्पोर्ट्स देख के क्यों ऐसे खुश होते हैं? क्योंकि उनको एंड में जब वो एंड देखते हैं तो उनको उन सालों का जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है उसका आपको फल दिखता है, और आप भी अपना जीवन में ऐसे कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, योगी मोदी को काफ़ी क्रेडिट किया जा रहा है, लोग मोदी को राम का अवतार मान रहे हैं तो योगी को हनुमान का अवतार मान रहे हैं। आप किस अवतार में प्रधानमंत्री मोदी को देखती हैं और योगी को देखती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि जो अच्छा कार्य करेगा तो वो अच्छा पाएगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया। सब आपके भी नज़र में कि मोदी ने ही ये कार्य किया है? No, that's not what I'm saying. What I'm saying is, मैं क्या कह रही हूँ कि किसी ने एक सेवा ले ली, उन्होंने कुछ करना था, लॉजिस्टिकली उन्होंने चीज़ देखी, उन्होंने प्रोग्रेस देखी। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होना क्या चाहिए, what should be there, प्रोग्रेशन देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। उन्होंने कोई एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया। जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। और वो जो चीज़, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जहाँ एक फॉरेस्ट में एक ट्री गिरती है, जहाँ किसी ने देखा नहीं, क्या वो ट्री गिरी? वो तो गिरी, बस आपने देखा नहीं। वो मंदिर का निर्माण चुप चुपीते कर देते, जो सबके सामने कर देते। हम में भी से कोई भी, सब संगठित होके भी ये कर सकते थे, पर उसके पास प्लेटफॉर्म है, उसने प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लिया। मैम आप शंकराचार्यों के बारे में तो जानती होंगी, शंकराचार्य धर्म गुरु माने जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आधी अधूरी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इस पर आप बस लास्ट बार बता दीजिए। यह क्या है कि हमारी ये संस्कृति होती है कि जब भी नींव रखी जाती है तो तब उसकी के बाद ही स्थापना करी जाती है मूर्ति की, और वहाँ पूजन होता है। हम आपसे पूछते हैं, जब आप अपना घर बनाते होते तो आप उस घर में खड़ के ही बनवाते हो ना, ईश्वर का घर है तो वो करेंगे। और ये भी है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, किसी से भी ईश्वर सेवा ले सकता है। जब राम की इच्छा नहीं होती तो नहीं होता। जहाँ राम की इच्छा है कि वो कहाँ आना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कहाँ चीज़ें चाहते हैं, हम उस शक्ति को कैसे बांध सकते हैं? वो शक्ति किसी से भी कभी भी कैसे भी कार्य करवा सकती है।
तो उस चीज़ का हम आनंद लें, उस पर प्रश्न चिन्ह ना उठाएं। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे मैं करने जा रही हूँ, जो लोग नहीं आना चाहते, जैसे विपक्षी जो हैं वो लोग नहीं आना चाहते, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? रामलला का के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्होंने एक तरीके से ठुकरा दिया है। जी, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी, मेरा नाम ज्योति प्रभा भारती है, साध्वी ज्योति प्रभा भारती, और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी, जो आज समाधिस्थ हैं पिछले 1-1.5 महीने से, एक विशेष संकल्प को लेकर। कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि तपस्वियों की भूमि रही है, उनकी तपस्या का प्रभाव है जो हमारे चेहरे पे मुस्कान है, हमारी सांसें चल रही हैं। तो ऐसी ही तपस्या आज हमारी गुरु माँ कर रही हैं, और एक संकल्प के साथ, वो संकल्प ये है कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनको समाधि से उठाना। वो पिछले 2014 से समाधि में हैं, उनको समाधि से उठाने का संकल्प है कि वही वो शक्ति हैं, वही वो दिव्य सत्ता हैं जो उन्हें उठा सकती हैं, और कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उठा दे। आज इतने सालों में वो समाधि से हैं, लेकिन आज तक कोई उठा नहीं पाया, लेकिन वो हैं जो उठा सकती हैं। तो मैम, जो विपक्ष नहीं आना चाह रहा है, कह रहा है कि नहीं, हम निमंत्रण पत्र हम नहीं एक्सेप्ट करें, हम नहीं आएंगे रामलला के उसमें, बस उनके लिए कुछ बोल दीजिए आप। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, शायद आपने रामचरितमानस पढ़ा नहीं है। जब भगवान सेतु पुल बांध रहे थे, जब सेतु बन रहा था समुद्र पे, तो गिलहरी को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था सेवा करने के लिए, है ना। बंदर भालू को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था सेवा करने के लिए, वो स्वयं प्रभु के काज में आगे आए थे। तो आपको अगर लगता है कि आपके प्रभु हैं, तो आप स्वयं आएंगे, आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपको निमंत्रण मिला था अयोध्या आने के लिए? आप किस लिए अयोध्या आए? आप अपने प्रभु राम के लिए आए, उनकी सेवा के लिए आए। तो जो अपने आप को सेवक समझेगा प्रभु का, उस निमंत्रण की चिंता नहीं है फिर उसको। हमें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, हमारी दीदियों को लंदन में किसी से निमंत्रण नहीं दिया, तो वो आई है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उनके दिल में प्रभु राम है। तो जो प्रभु राम के भक्त हैं, उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अपनी सत्ता के भक्त हैं, उन्हें जरूर चाहिए निमंत्रण। सत्ता के पक्ष किसको कहना चाह रही है? ये देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया है इस समझदारी के लिए, पूरी दुनिया जानती है उस चीज़ को। और यही मैं कहना चाहूँगी कि आप प्रभु राम के भक्त बनो। भक्ति से सब कुछ मिलता है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत तो होई अनुकूला। भक्ति समस्त सुखों की खान है। भक्ति नहीं करोगी, वो वेश कीमती किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट में हम आपसे भी बातचीत कर ले रहे हैं। देश के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो अपने कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर में जाना चाह रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं कि मंदिर में देश के जो युवा हैं, लड़कियां हैं, वो जींस टॉप पहन के अक्सर जाती हैं, और हर जगह कुछ जगह प्रतिबंध भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दिल से सुनते हैं, ड्रेसअप का कुछ नहीं है। उस पर बस एक लास्ट आप। जी, मैं सभी जो युवाओं के साथ साथ मैं नारियों के लिए एक विशेष संदेश देना चाहूँगी। जो यंग बच्चियाँ हैं, यंगस्टर्स हैं, जितनी भी यंग जनरेशन है, और इंक्लूडिंग द फीमेल्स, कि आपकी सोच मॉडर्न है, बट मॉडर्न होना ये नहीं कहता कि आप अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भूल जाओ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है विकास। विकास आप कर रहे हैं, लेकिन विकास किसी चीज़ की कीमत पे नहीं होता कि आप इसको छोड़ दें तो आप विकास करें। अपनी भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना आत्मिक विकास करिए, वो वास्तविक मॉडर्नाइजेशन है। क्योंकि रही बात कपड़ों की और इन सब चीज़ों की, ड्रेसअप मैटर्स ऑफ कोर्स। आप एक नारी हैं, हमारे पूर्व काल में भी नारियां होती थी और एक से एक गुणवान होती थी, और उनके ड्रेसअप्स ऐसे नहीं होते थे। मॉडर्नाइजेशन ये नहीं कहता कि आप छोटे कपड़े पहने या आप ऐसा करें, ये सब हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं कहता, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति है, हम विश्व को, हम वेस्ट को सिखाने वाले हैं। भारतीय संस्कृति जननी है, सभी भाषाओं की जननी है। भारत यानी भा यानी प्रकाश में रत रहने वाला है हमारा भारत देश। हमें वेस्ट को देना है और हमेशा दिया है, हमें उनका अडॉप्ट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अयोध्या में साध्वी लोग मौजूद थी, जो कि लंदन से आई हुई है, और लंदन से सिर्फ रामलला के लिए यहाँ पर आई हैं। तो मैं आपको इन लोगों के बारे में बता रही थी। ये लोग भी अध्यात्म से जुड़े हर सवालों का जवाब बड़े ही मधुरता से, सरलता से दे रही थी। तो आपको इनका जवाब कैसा लगा, इनसे बातचीत कैसी लगी, मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। धन्यवाद।